नमस्कार। आत्मनिर्भर भारत के इस विशेष अंक में आप सभी का स्वागत है। ईट स्मार्ट चैलेंज और ट्रांसपोर्ट फॉर ऑल चैलेंज की शुरुआत हो चुकी है। जी हां, आज हम ईट राइट इंडिया दृष्टिकोण को ईट स्मार्ट सिटीज चैलेंज की शुरुआत के साथ स्मार्ट सिटी के स्तर तक बढ़ाते हुए देख रहे हैं। ये कदम शहरी आबादी को भोजन के सही विकल्प देने और एक सेहतमंद एवं खुशहाल राष्ट्र बनाने में मदद करेगा। साथ ही स्मार्ट सिटीज मिशन में किए जा रहे उल्लेखनीय कार्य को और आगे बढ़ाएगा और ट्रांसपोर्ट फॉर ऑल एक डिजिटल समाधान विकसित करेगा जो सार्वजनिक परिवहन को सभी के लिए सुरक्षित, वहनीय, आरामदायक और विश्वसनीय बनाएगा। जी हां, और अगली इस चर्चा में आपके साथ अगले 1 घंटे तक रहूंगी मैं, जया सिन्हा और रुकमा। Well, welcome to you, Jaya, and to all our viewers as well to this edition of Atmanirbhar Bharat. The Ministry of Housing and Urban Affairs launched the Transport for All Digital Innovation Challenge and Eat Smart Cities Challenge on the 16th of April. Firstly, to support cities and startups all over the country to move towards digital transformation in urban mobility. And secondly, to make India play a pioneering role in developing the concept of integrating food systems into city planning and development to provide people with healthy, safe and nourishing diets. What are the implications of the launch of all this? We take a look in this entire program as we discuss with our guests in the studio who will be joining us through Zoom and Skype and through various discussions during the course of this meeting. बिल्कुल, बट फर्स्ट आपको एक झलक दिखा देते हैं इस मूवमेंट की। रुकमा। Looking through the food lens provides modern cities many interesting opportunities to develop institutional, social and economic infrastructures to ensure the health and happiness of their citizens by transforming their food ecosystems. The Eat Smart Cities Challenge is open to all cities in India that will compete to create an Eat Right vision for their cities. The challenge is focused on food safety and hygiene, promoting nutrition and healthy diets, sustainable food environment, social and behavior change. All participating cities will receive support throughout the process. Each city will implement a pilot project from the 5 areas of action of Eat Right India initiatives: licensing and registration of food business and surveillance drives, benchmarking and certification, changing food environments, sustainable food environment, mass mobilization. Cities will be selected to bring their vision into reality. The winning cities would create a better food future and inspire other cities. Well, the Eat Smart movement, as you just saw, is a collective effort of all stakeholders that encompasses a wide range of initiatives on the demand and supply side to transform the food ecosystem of the country. And in this spirit, FSSAI, in collaboration with the Smart Cities Mission, aspires to develop the entire urban food ecosystem in cities with end-to-end solutions to ensure safe and wholesome food for its people. And coupled with this is a Transport for All initiative that was launched yesterday. Let's ask the Secretary of the Ministry of Housing and Urban Affairs, Durga Shankar ji, about what basically is the thinking behind launching these two movements. थैंक यू रुक्मा जी। ये 15 अप्रैल को हमारे मंत्रालय के द्वारा ईट स्मार्ट सिटीज चैलेंज और ट्रांसपोर्ट फॉर ऑल चैलेंज, ये 2 चैलेंजेस लॉन्च किए गए। इसके पहले हमने जून 2020 में साइकिल फॉर चेंज चैलेंज, सितंबर 2020 में स्ट्रीट्स फॉर पीपल और फरवरी 2021 में नर्चरिंग नेबरहुड चैलेंज, ये 3 और चैलेंजेस इस कोरोना काल में हमने जारी किए हैं। आपको ज्ञात है कि हमारे देश में एक आत्मनिर्भर भारत का एक मेजर चैलेंज माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस कोरोना काल में प्रारंभ किया और इसके तमाम सारे आयाम पूरे देश भर में अलग अलग रूप में चल रहे हैं। इसमें फिट इंडिया के लिए कि जब देश हमारा आत्मनिर्भर हो, उसके लिए देश के हर नागरिक को फिट होना चाहिए और फिट होने के लिए उसको एक्सरसाइज भी हो। आपको जानकारी है हमारी
स्मार्ट सिटीज के माध्यम से तमाम सारे शहरों में ओपन जिम बनाए गए हैं। जो हमारा साइकिल फॉर चेंज और स्ट्रीट्स फॉर पीपल के जो चैलेंजेस हैं, इसके माध्यम से तमाम सारे शहरों में एक लोगों में एक इस प्रकार की नई जागृति आई है। बहुत सारे जगह साइकिल के ऊपर लोगों को पेडेस्ट्रियन पाथवे ये सारा शुरू हुआ है। इसी सिलसिले में ये जो FSSAI फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिन्होंने 2018 में एक ईट राइट मूवमेंट शुरू किया, ये बहुत ही महत्वपूर्ण मूवमेंट है जिसके माध्यम से लोगों को डाइट के बारे में कॉन्शियस बनाना, क्योंकि डाइट को लेकर के तमाम किस्म की बीमारियां होती हैं, चाहे वो हाइपरटेंशन हो, कोलेस्ट्रॉल से रिलेटेड बीमारियां हो, ओबेसिटी हो, माइल न्यूट्रिशन हो, किस्म किस्म की बीमारियां होती हैं। और उन बीमारियों से हमारी हेल्थ के ऊपर कम खर्च हो, हम एक ज्यादा हेल्दी लाइफ रह सके, इसके लिए हमारा फूड के प्रति कॉन्शियस होना बहुत जरूरी है। ये मूवमेंट 2018 से शुरू किया गया कि कैसे हम अपने खाने में ट्रांस फूड को कम करें, कैसे हम हाइजीनिक फूड की व्यवस्था करें, कैसे हम लोग जो है जो फूड को फोर्टिफाई करें, वगैरह वगैरह। इसी सिलसिले में ये जो एक नया फूड कल्चर ईट राइट मूवमेंट जो हमारे FSSAI हेल्थ स्वास्थ्य मंत्रालय के तहत उन्होंने जो लॉन्च किया, उनके साथ सहयोग करके हमने ईट स्मार्ट सिटी चैलेंज ये 15 अप्रैल को लॉन्च किया। इस चैलेंज का मकसद ये है कि हमारी जो 100 स्मार्ट सिटीज है और उसके अलावा ऐसे जो हमारे राज्य सरकारों या केंद्र शासित राज्यों के राजधानियां हैं या ऐसी शहर जिनकी आबादी 5 लाख से ज्यादा है, यानी कुल मिलाकर के 139 शहर, वो शहर इसमें भाग ले और एक हेल्दी कंपटीशन, एक ऐसी प्रतिस्पर्धा जिसमें एक दूसरे को चैलेंज के तौर पे देखें। और 5 अलग अलग एरिया में, पहला एरिया है लाइसेंसिंग एंड सर्विलेंस की, ये कैसे हम लोग लाइसेंसिंग जो आवश्यक है फूड के बारे में, चाहे स्ट्रीट फूड हो, चाहे वो हमारे किस्म किस्म के पैक्ड फूड हो, तो लाइसेंसिंग एंड उसका कैसे सर्विलेंस रख सकते हैं, कैसे बेंचमार्क करेंगे और सर्टिफाई करेंगे लोगों को। जो हमारे तमाम सारे मिठाई की दुकानों से लेकर के जो कहीं पे चाट, कहीं पे कुछ, हमारे हर शहरों की अलग अलग खासियत होती है। आपको इंदौर में भी हाल में एक 56 हमारे स्मार्ट सिटी ने शुरू किया, चौबाटी के बारे में, लखनऊ में चौक के बारे में, हर जगह की कुछ कुछ खासियत होती है। दिल्ली में यहाँ पे जो हमारा जो चांदनी चौक के फूड के बारे में, तो वहां पे हम इसको सर्टिफाइड बेंचमार्क करें। एक ईट राइट कैंपेन जिसके कैंपसेस जैसे कि बच्चों के हॉस्टल्स हों, ये लोगों के रहने के जगह हों, वहां पे कैसे उस कैंपस को हम लोग ईट राइट, उनको ऐसी चीजें जो कि तमाम किस्म के ऐसे फूड जो हमारे लिए नुकसानदेह है उनसे हट करके जो हमारी ऐसे फूड जो कि वहां पे लोकल वैरायटी हो, सीजनल वैरायटी हो, या उसको अलग अलग की चीजें जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए सही हो, जो कहते हैं सही भोजन तो सही जीवन, इस प्रकार का फूड हमारे लोगों कैंपस में हो, उसको हम डेवलप करें। रेलवे में, बस स्टेशनों पे, इस जगह हम एक सही कैंपस डेवलप करें। एक सस्टेनेबल फूड इन्वायरमेंट जिसमें कि फूड का तमाम सारे वेस्टेजेस होते हैं, बहुत सारे फूड हम ऐसे लोगों को जिनकी जरूरत है, हम हमसे अगर बचत है तो उनको दे दें, या ऐसे फूड के आइटम जैसे कि जो जला हुआ तेल है उससे आज बायोडीजल बन रहा है, एक बड़ा मूवमेंट स्टार्ट हुआ है। इसके बारे में या तमाम सारी चीजों को कैसे हम लोग अपने उसको एक सर्कुलर इकोनॉमी के तहत उसका उपयोग कर सकते हैं, कैसे हम लोग सिंगल यूज प्लास्टिक को अपने फूड से बाहर निकाल सकते हैं, वगैरह एक सस्टेनेबल फूड हैबिट के बारे में। और सबसे इंपॉर्टेंट लोगों में अवेयरनेस, लोगों में इस बात की जानकारी कि कैसे आप क्या फूड खाएंगे, कैसे खाएंगे, जिससे कि आज जो कोरोना काल है जिसमें हमारे लिए बॉडी की बहुत आवश्यक है, तो बॉडी इम्यूनिटी बनाने के लिए कैसे न्यूट्रिशियस फूड आप लेंगे जिससे कि आप आपकी इम्यूनिटी बिल्डअप करें, क्या आपकी ऐसी आदतें शुमार होनी चाहिए, आदतें बननी चाहिए जिससे कि आपको आपका इम्यूनिटी बेहतर हो, इसके बारे में लोगों में अवेयरनेस बिल्डअप करना, लोगों को जानकारी देना, ये पूरा का पूरा एक इसका ध्येय होगा। और इन 5 क्षेत्रों में हमारे जो 139 शहर हैं, इन शहरों को कहा गया कि आप पायलट करेंगे, एक कम से कम स्कीम पायलट करेंगे, और इस पायलट के दौरान पूरी एक जन आंदोलन के तौर पे, आप जानते हैं हमारे स्मार्ट सिटी जो माननीय प्रधानमंत्री जी की अवधारणा थी कि हमारे शहर लोग उसको बनाएं, और लोगों ने बड़े बड़े स्तर पे सहयोग किया, और उसे स्मार्ट सिटी के चैलेंज के थ्रू लोग उसमें अपने शहर के बारे में क्या सोचते, अच्छा क्या करना चाहते वो लेकर के आए। इसी प्रकार से एक फूड कल्चर बनाने के लिए लोगों को इससे जोड़ा जाए और लोग इसके प्रति कॉन्शियस हो, और बेहतर फूड हैबिट के माध्यम से हमारे हेल्थ के जो कॉस्ट है, हेल्थ के ऊपर जो तमाम सारी दिक्कतें होती हैं, उन चीजों से हमको निजात मिले। तो पहला तो हमारा ये स्मार्ट
फूड स्मार्ट सिटी चैलेंज। जो दूसरा चैलेंज हमारा है ट्रांसपोर्ट फॉर ऑल। ये ट्रांसपोर्ट फॉर ऑल चैलेंज आप जानते हैं कि हमारा जो एक तो हमने कहा कि साइकिल फॉर चेंज, दूसरा स्ट्रीट फॉर पीपल, एक यानी पेडेस्ट्रियनिज्म एंड साइकिल, ये दोनों नॉन मोटराइज ट्रांसपोर्ट है। तीसरी जो हमारी जरूरत है कि लोगों को सारे ट्रांसपोर्ट को पब्लिक ट्रांसपोर्ट के साथ जोड़े या शेयर्ड ट्रांसपोर्ट के हिसाब से जोड़े, जिससे कि जो एक एयर पोल्यूशन होता है शहरों में, उस शहर के एयर पोल्यूशन से हम लोग उसको कम कर सके। ये बहुत एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। और इसके लिए जो तमाम सारे हमारे एनजीओ हैं, तमाम जो ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि ट्रांसपोर्ट के बारे में काम करते हैं, स्टार्टअप्स हैं, उन स्टार्टअप्स को ये चैलेंज दिया गया कि आप ऐसी युक्ति निकालिए, ऐसे तरीके निकालिए जिससे कि हम लोगों को, चाहे वो फेयर के बारे में, आपको मालूम है हमारे देश में नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड, ये पहला एक बहुत बड़ा मूवमेंट 2019 के मार्च में माननीय प्रधानमंत्री जी ने अहमदाबाद में लॉन्च किया, और आज इसकी काफी ज्यादा देश में आप अपने डेबिट कार्ड के ऊपर ही सीधे अलग अलग मोड में ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, और इसका धीरे धीरे ये बढ़ता चला जा रहा है। तो कैसे इसका नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड को यूज करके तमाम सारे मोड्स हैं उसमें आप सीमलेसली मूवमेंट कर सकते हैं, कैसे लोगों को ज्योग्राफिकली एक दूसरे को इसको जोड़ सकते हैं, लोगों को ट्रांसपोर्ट में सेफ्टी इंप्रूव कर सकते हैं, और अधिक से अधिक लोगों को पब्लिक ट्रांसपोर्ट के ऊपर या शेयर ट्रांसपोर्ट के ऊपर ला सकते हैं, जिससे हमारी एयर क्वालिटी बेहतर हो। इस काम को करने के लिए जो हमारे जो स्टार्टअप्स या तमाम सारे ऑर्गेनाइजेशंस आगे बढ़ेंगे, उनको भी हम लोग पुरस्कृत करेंगे। और यही नहीं बल्कि अर्बन मोबिलिटी इंडिया कॉन्फ्रेंस हमारी हर साल होती है, जिसमें देश और दुनिया भर के लोग भाग लेते हैं। अगली हमारी कॉन्फ्रेंस 29 से लेकर 31 अक्टूबर के मध्य कोची शहर में, जहां आज वाटर मेट्रो भी है, बस ट्रांसपोर्ट भी है, तमाम सारी चीजों का वहां पे एक संगम है। तो वहां पे जो हमारा 29 से 31 अक्टूबर का जो कॉन्फ्रेंस होगा, उसमें इनको अपना शेयर करने का मौका मिलेगा। इसके अलावा इन्हें प्राइज मनी मिलेगी, उसी में हमारा जो अर्बन मोबिलिटी इंडिया कॉन्फ्रेंस होगा वहां हम इसको प्रस्तुत करेंगे। आइडिया यह है कि हम इन चैलेंजेस के माध्यम से पब्लिक को इन कार्यक्रमों से जोड़ें, और इनके माध्यम से न केवल इन 139 शहरों में बल्कि आगे बढ़कर के देश के तमाम सारे शहरों में इस प्रकार के मूवमेंट करके लोगों को एक बेहतर हेल्दी हैबिट्स लाएं, और उसी से जो हमारा आत्मनिर्भर भारत है, जिसके और तमाम सारे आयाम पे हमारा मंत्रालय काम कर रहा, इस आयाम के माध्यम से पब्लिक को जोड़ करके हम लोग आत्मनिर्भर भारत में पूरा सहयोग दे सकते हैं। बिल्कुल, जब हम स्मार्ट सिटीज की बात करते हैं तो उसमें कई पहलू सामने आते हैं, और इसीलिए ईट स्मार्ट सिटीज चैलेंज और ट्रांसपोर्ट फॉर ऑल चैलेंज की शुरुआत हुई है। हमारे जो खास मेहमान हमारे साथ जुड़े रहे हैं, लेकिन इस वक्त सीधे रुक करेंगे पश्चिम बंगाल का, जो कि पश्चिम बंगाल में छठे चरण के चुनाव के लिए प्रचार जोर पकड़ रहा है। और इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बीच पश्चिम बंगाल में एक जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। आपके खिलाफ है शिकायत, करूं? बुरा तो नहीं मानोगे ना? लेकिन मेरी शिकायत जरा देखिए। मैं यहां 2 बार आया हूं लोकसभा के चुनाव में। जब मैं प्रधानमंत्री बनना था और मैं आपसे वोट मांगने आया था, बाबुल जी के लिए वोट मांगने आया था, लेकिन पहले जब आया तब तो मेरे लिए वोट मांगता था, फिर भी 1/4 लोग भी नहीं थे सभा में। आज चारों तरफ मैंने ऐसी सभा पहली बार देखी है जी, पहली बार देखी है। अब बताइए मेरी शिकायत मीठी है कि कड़वी है? आज आपने ऐसा दम दिखा दिया है, ऐसी ताकत दिखा दी है। मैं जहां देख सकता हूं मुझे लोग ही लोग दिखते हैं, बाकी कुछ दिखता ही नहीं है। क्या क्या कमाल कर दिया आप लोगों ने। लेकिन आगे का काम बहुत महत्वपूर्ण है, और वो है वोट देने के लिए जाना, वोट देने के लिए औरों को ले जाना। करोगे? पक्का करोगे? सब लोग करोगे? देखिए, तभी यहां से ये माफिया राज समाप्त होगा, ये माफिया शाही तभी समाप्त होगी। और भाइयों बहनों, मैं बंगाल में जहां गया हूं यही माहौल है।
और उधर क्या है? दीदी, ओ दीदी, देखिए दीदी, ओ दीदी, 2 मई में अब सिर्फ आधा महीना बचा है, आधा चुनाव हो चुका है, सिर्फ कुछ दिन और कोयला धुले मोयला जाए ना। भाइयों और बहनों, सोनार बांग्ला के संकल्प के साथ बीजेपी सरकार यहां आपकी हर मुश्किल कम करने के लिए काम करेगी। बंगाल में कानून व्यवस्था का राज स्थापित किया जाएगा। कानून के राज में यहां नए उद्योग लगेंगे। बंगाल में निवेश बढ़ेगा। बीजेपी सरकार में हर कोई अपना काम करेगा। आपके जीवन में टीएमसी के तोलाबाजों की जो घुसपैठ हुई है, उसे जीरो कर दिया जाएगा, दूर किया जाएगा। पुलिस अपनी जिम्मेवारी निभाएगी, अपना काम करेगी। राज्य सरकार के अलग अलग विभाग अपना जन सेवा का दायित्व निभाएंगे, अपना काम पूरा करेंगे। प्रशासन अपनी जिम्मेवारियों को निभाते हुए जनता जनार्दन की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए दिन रात काम करेगी। और सरकार अपनी जिम्मेवारियों को पूरा करने के लिए काम करेगी। और बीजेपी का कार्यकर्ता मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आपकी सेवा में हरदम खड़ा रहेगा। और इसमें जो भी खेला करने की कोशिश करेगा, उस पर कानून के तहत उतनी ही सख्त कार्रवाई भी होगी। भाइयों और बहनों, दीदी ने बीते 10 सालों में विकास के नाम पर आपके साथ विश्वासघात किया है। विकास के हर काम में, हर काम के आगे दीदी दीवार बन के खड़ी हो गई, दीवार बन के खड़ी हो गई। केंद्र सरकार ने 5 लाख रुपए के मुफ्त इलाज की सुविधा दी, तो दीदी दीवार बन गई। केंद्र सरकार ने शरणार्थियों की मदद के लिए कानून बनाया, तो दीदी इसका भी विरोध करने लगी। केंद्र सरकार ने मुस्लिम बहनों को 3 तलाक से मुक्ति के लिए कानून बनाया, तो दीदी फिर आग बबूला हो गई। केंद्र सरकार ने किसानों को बिचौलियों से मुक्त करने वाले कानून बनाए, तो दीदी विरोध में उतर आई। केंद्र सरकार ने किसानों के बैंक खातों में सीधे पैसे ट्रांसफर करने शुरू किए, तो दीदी ने इससे भी किसानों को वंचित रख दिया। साथियों, बंगाल को विकास रोकने वाली नहीं, डबल इंजन की सरकार चाहिए, डबल इंजन की सरकार। बंगाल की बीजेपी सरकार आपका लाभ कराने वाली हर उस योजना को लागू करेगी जिन्हें दीदी की सरकार ने रोका हुआ है। पहली ही कैबिनेट में पीएम किसान सम्मान निधि पर बड़ा फैसला लिया जाएगा। बंगाल के हर किसान के खाते में 18,000 रुपये सीधे ट्रांसफर हो, जिसको दीदी ने रोकने की कोशिश की। 2 मई के बाद, नई सरकार बनने के बाद
दीदी नहीं रोक पाएगी, क्योंकि सरकार आपने बनाई है, आपके लिए बनाई है और वो आपके लिए काम करेगी। बिल्कुल, आसनसोल पश्चिम बंगाल में जनसभा को संबोधित कर रहे थे प्रधानमंत्री। और ईट स्मार्ट चैलेंज और ट्रांसपोर्ट फॉर ऑल चैलेंज की शुरुआत पर आत्मनिर्भर भारत में हमारी चर्चा जारी है। एक और आपको झलक दिखाने की बात करें तो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के तत्वाधान में FSSAI द्वारा शुरू किए गए ईट राइट इंडिया आंदोलन ने लोगों को सुरक्षित, स्वस्थ और निरंतर खाने के बारे में जागरूकता पैदा करने का एक लंबा सफर तय किया है। और ईट राइट इंडिया के तहत विभिन्न पहलों को अपनाने और बढ़ाने में अपने प्रयासों को पहचानने के लिए ईट स्मार्ट सिटीज चैलेंज को शहरों के बीच एक प्रतियोगिता के रूप में देखा गया है। आइए आपको इसकी एक झलक दिखाते हैं। Across India, a health movement is taking shape. Eat right! Redefining how people relate to food. घी, तेल, नमक और चीनी को कीजिए थोड़ा माइनस। It has a simple philosophy. If it's not safe, it's not food. If it's not healthy, it's not food. And if it's not good for the planet, it's not food. India is now the diabetes capital of the world, in addition to high undernutrition and deficiencies such as anemia. With heart ailments and other non-communicable diseases steadily on the rise, managing diets and lifestyle is now critical. To address the mounting crisis, the Food Safety and Standards Authority of India, FSSAI, is taking the lead by launching Eat Right India. FSSAI continues to set and enforce food safety standards, but its role has evolved from a regulator to enabler as well. Its new approach integrates safety, health, nutrition, and the environment more consciously and visibly. But molding the food habits and lifestyles of 1.3 billion people across countless cuisines and cultures can't be done by FSSAI alone. So, it's taken every possible stakeholder along: citizens, artists, restaurants, media, food producers, corporates, and development agencies. For behavior change to occur at a mass level, it can't be imposed. It has to come from within. इतना खाता हूँ तब भी कमी। संपूर्ण पोषण की। Understanding this, the campaign features a new language and user-friendly symbols to nudge people. चाय में चीनी लेते हैं? यानी कोई नहीं, लीजिए लीजिए, बस आधा चम्मच कम कर दीजिए। और कुछ दिन बाद समझ गया ना? Eat Right India encourages every collaborator to be a leader. Food producers are reformulating products, providing better nutritional information and investing in healthy food. Thousands of professionals are committing themselves to ensuring that people eat right. So we try and take those street food snacks and make it a bit more lighter, less in fats, less in calories, but absolutely delicious. Over 200 places of worship have collaborated to design Bhog, a scheme for blissful hygienic offering to God. गवर्नमेंट इनिशिएटिव लेके इसको आगे पढ़ने से हमारा फूड को क्वालिटी मेंटेन होगा। It will definitely help us improve the standards of the kitchen. ये हर जगह पूरे बॉम्बे नहीं पूरे महाराष्ट्र पूरे इंडिया में होने चाहिए। Oil companies under the Petroleum Ministry are rolling out RUCO, a system for converting used cooking oil to biodiesel. To sustain a movement, constant innovations are needed. And so, clean fruit and vegetable markets and clean street food hubs are being created. Eat Right campuses are becoming mini ecosystems where healthier food choices are being made and offered on menus. State-of-the-art food testing laboratories are being established, and campaigns to minimize food and plastic waste are being rolled out. Plastic recycling is the need of the hour. We are in a situation where we need to act right now. To strengthen behavior change, online Eat Right platforms are being used to train frontline health workers. And IEC creations like an Eat Right merchandise store and a fun quiz complete Eat Right India's 360-degree approach. Decades ago, the Indian freedom movement was launched by Mahatma Gandhi, a figure deeply respected for his commitment to healthy eating and living. Eat Right India hopes to ignite a similar mass movement for health.
The Swasth Bharat Yatra, a pan-India cyclothon, was a crucial awareness campaign to inspire citizens to take charge of their own diet and health. महात्मा गांधी के 150वीं जयंती वर्ष के उपलक्ष्य में देश भर में कई कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। इसी कड़ी में FSSAI ईट राइट इंडिया अभियान के अंदर खाने की अच्छी आदतों को बढ़ावा देने में जुटा है। Changing food and lifestyles on such a grand scale can feel daunting. But stakeholders at every level are gearing up to drive this movement. The states are ready to take the torch that has been lit with the movement. Their leadership will be crucial to success at the national level. The dream is that Eat Right's message will resonate with everyone in the country and indeed across the globe. Eat Right for a better life. To Eat Right India. और हमारे साथ इस खास चर्चा में हमारे खास मेहमान भी लगातार जुड़े हुए हैं। दुर्गा शंकर मिश्रा जी, सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, साथ ही साथ अरुण सिंघल, CEO FSSAI, और डॉक्टर बानी टंबर, असिस्टेंट प्रोफेसर इंस्टीट्यूट ऑफ होम इकोनॉमिक्स। ये तीनों खास मेहमान का एक बार फिर आपका स्वागत करते हैं। अरुण सिंघल जी से पूछते हैं, जिस तरह से अभी हमने फिल्म देखी, खाद्य सुरक्षा की हम बात करते हैं, लेकिन यहाँ पर बात हो रही है शहरी आबादी की। शहरी आबादी को सही खान पान के लिए प्रेरित करना, उन्हें जागरूक करना कहीं ना कहीं थोड़ा चुनौतीपूर्ण हो जाता है। किस तरह से आप देखते हैं इस चैलेंज को? आपने एक फिल्म देखी जिसमें सारे इनिशिएटिव्स के बारे में बताया गया ईट राइट इंडिया कैंपेन के। मैं इसकी पृष्ठभूमि में थोड़ा सा जाना चाहता हूं, अगर आपकी अनुमति हो। जी जी। हम अगर देश में देखें पब्लिक हेल्थ चैलेंजेस जो फूड और न्यूट्रिशन के फील्ड में हैं, एक तरफ तो मेल न्यूट्रिशन है जिसके कारण स्टंटिंग हो रही है, वेस्टिंग हो रही है, बच्चे कमजोर हो रहे हैं और लाइफ स्पैन कम हो रहा है, मेंटल डेवलपमेंट कम हो रहा है। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि NCDs बढ़ रही हैं, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, हार्ट डिजीज, ये सब चीजें बढ़ रही हैं और लोग वल्नरेबल हो रहे हैं, और ये शहरों में भी हो रहा है, गांव में भी हो रहा है। और तीसरी तरफ इन्फेक्शस डिजीज फैलती हैं जब हाइजीन की कमी होती है। तो ये सारे चैलेंजेस जो हैं, ये गांव को ही कन्फाइंड हो या शहर में ही हो ऐसा नहीं, ये तो सब जगह, पूरे देश में हर जगह है। और इसलिए जब हम कोई कैंपेन चलाते हैं, ईट राइट इंडिया कैंपेन जैसा, तो उसमें हमें देश के सारी ही आबादी को टारगेट करना होता है। एक होल ऑफ सोसाइटी, होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच फॉलो करनी पड़ती है, और अलग अलग सेटिंग्स में, जैसे आपने फिल्म में देखा कि स्कूल में जाके, कैंपसेस में जाके, रेलवे स्टेशन पे जाके, तरह तरह के जगहों पे जाके, वहाँ पे हमें ईट राइट के बारे में अवेयरनेस पैदा करनी पड़ती है। तो इस कड़ी के तहत हम लोग का ईट राइट इंडिया कैंपेन चल रहा है। उसमें वेरियस कंपोनेंट्स हैं, मोटे मोटे 3 पिलर्स हैं जिन पे हम लोग काम करते हैं। पहला पिलर है कि ईट सेफ, खाना जो आप खाएं वो सेफ होना चाहिए, हाइजीनिक होना चाहिए, उसमें एडल्ट्रेशन नहीं होना चाहिए, पेस्टिसाइड्स नहीं होना चाहिए, इंसेक्टिसाइड्स नहीं होने चाहिए। तो खाना सेफ होना चाहिए, ये पहला पिलर है। दूसरा पिलर हम लोग कहते हैं ईट हेल्दी। ईट हेल्दी में ये है कि आपकी डाइट में डाइवर्सिटी होनी चाहिए, बैलेंस डाइट आपको खानी चाहिए, फल और सब्जियां खानी चाहिए, ट्रांस फैट्स नहीं खाने चाहिए, सॉल्ट, शुगर, फैट्स का सेवन कम करना चाहिए। इस तरह की चीजें जो है वो ईट हेल्दी में आ जाती हैं। और तीसरा होता है ईट सस्टेनेबल, जो पिलर हमारा है कि खाने का वेस्टेज कम से कम हो और लोकल खाना खाया जाए, सीजनल खाना खाया जाए, फूड लॉस ना हो, प्लास्टिक्स का प्रयोग कम हो, वाटर कंजर्व किया जाए। इस तरह की चीजें सस्टेनेबल में आती हैं। ये 3 मोटे मोटे पिलर्स हैं जिसपे हम अपना ईट राइट इंडिया कैंपेन चलाते हैं। और इसी को बढ़ावा देने के लिए हम लोगों ने अभी ईट राइट चैलेंज लॉन्च किया था। देश के करीब 200 जिले उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इन्हीं सब चीजों पे काम कर रहे हैं। एक बेसलाइन सर्वे किया, उसके बाद अब 1 साल तक वो जिले काम करेंगे, 1 साल बाद इवैल्यूएट करेंगे इम्प्रूवमेंट का, और उनको बेस्ट जिले होंगे उनको पुरस्कृत करेंगे। उसी की तर्ज पे शहरों के लिए ईट स्मार्ट सिटीज चैलेंज आया है। इसके कंपोनेंट जो हैं, अभी सचिव अर्बन अफेयर्स ने बताए थे आपको कि 5 मोटे मोटे कंपोनेंट्स बनाए गए हैं। जो भी शहर पार्टिसिपेट करेंगे वो शहर इन सब 5 चीजों पे काम करेंगे। 3 महीने एक पायलट फेज होगा, उसके बाद अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे, उस पर 1 साल तक इसका विस्तार किया जाएगा। इन्हीं सब एक्टिविटीज पे हम लोग फोकस करेंगे।
And coming to our other guest, Dr. Bani Tambar now. Ma'am, well, we've heard that it's a challenge, both the Transport for All challenge as well as the Eat Smart challenge. How do you feel that such challenges actually help in building an ecosystem? We are looking at an entirely new India now. Correct. So you see, as Mr. Singhal just mentioned, that India is undergoing transition. We are, battling. There are about, if you see more than 200 million people who are undernourished. But on the other hand, we are a huge number of people who are overnourished. That means they are overweight and obese. So it's a challenge to convince people to eat right. So the Eat Right India movement is aimed to focus on that. In fact, Sir mentioned that there are three pillars for the Eat Right India campaign. So I would rather add another important aspect which the Eat Right India campaign wishes to address, and that is to eat mindfully. So not only are you, on one hand, creating awareness that, that people demand good food. They demand that the food should be wholesome, it should be healthy, it should be nutritious. But on the other hand, you're also trying to provide this food. So the Eat Right India campaign works on these aspects. It wants to create people who create awareness in people so that they start demanding these foods. And how do we do that? So FSSAI has focused the energies of various partners. It has taken energies of various stakeholders, and it has provided us a very good platform. Because creating this behavior change is very difficult. It needs harnessing energies from all sources. So, for example, we have an organization called NetProfan, which is an organization of various societies of the country. So we have nutritionists, we have dietitians, we have food scientists, public health nutritionists, chefs of the country, even doctors as part of it. So we are in touch. So every member of these societies are in touch with several other members. For example, I am from the academic field, and I am in touch with so many of my students. So it is my role to make them aware about, first, to demand good food, and secondly, to be able to understand what good food is. So for example, if I'm trying to tell that, reduce the amount of trans fat, and not always is trans fat available only in the Western, so-called Western type of diets. Trans fat, a lot of it is available in most of our Indian snacks, bhujiyas, namkeens, which we are consuming on a daily basis. So we need to create that kind of an awareness in people. If I'm educating a student now, and if it's a girl child, she's going to pass on this information to her family, further to the family whom she marries into. So it's like a chain which is set off, and this is the kind of challenge we are trying to overcome through the Eat Right India campaign, because it's not just simply to say, to pass on messages on one side only, that eat right, eat well, eat safe, eat healthy. The behavior change and the importance to bring about this behavior change is the main challenge, and we want to address it through the Eat Right India campaign. So if you're trying to train people to identify food which is safe in terms of whether it is adulterated or not. So FSSAI has these very nice DART books, or they have these very simple tests which can be performed at home, and people are able to figure out that this food is healthy or wholesome or not. If I'm trying to teach people that the food label gives you so much of information in terms of what kind of ingredients that particular food has. For example, if a person wants to consume less amount of salt, the food label will give you the exact information. How many of us actually correctly read the food labels? The maximum we do is we read the date of manufacture, expiry, and that's about it. But the food label gives you so much more information. So that's what the challenge we are facing. We are trying to educate people so that they are empowered to make these correct choices, because no amount of doling of information is going to make the consumer pick up the right foods. They have to become aware. बिल्कुल, तो उन्हें सही चीज के लिए जागरूक करना, उन्हें सही चीज के लिए जानकारी देना, ये एक बड़ा चैलेंज होगा, और जिसके लिए यहाँ पर तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं वो प्रयासरत हैं। दुर्गा शंकर मिश्रा जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, यहाँ पर ट्रांसपोर्ट फॉर ऑल चैलेंज, अगर हम इस चैलेंज की बात करें,
जिस वक्त इस चुनौती से हम गुजर रहे हैं, उस चुनौती में ये क्षेत्र काफी ज्यादा प्रभावित हुआ है। ऐसे में जब हम सभी के लिए एक स्वच्छ या सुरक्षित ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं, किस तरह से विभिन्न स्टेक होल्डर्स को या स्टार्टअप्स को भी यहाँ पे बढ़ावा देने की बात यहाँ पे कही गई है इस चैलेंज के थ्रू, किस तरह इन सबको एक ही मंच पर लाने का जो प्रयास होगा वो आप कैसे मुमकिन कर पाएंगे? इस चैलेंज का फोकस है कि हम कैसे जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट उपलब्ध है शहरों में, उस पब्लिक ट्रांसपोर्ट में अधिक से अधिक लोगों को लेके जाए, या जो शेयर ट्रांसपोर्ट है, जो तमाम किस्म के मल्टी मॉडल फैसिलिटीज शहरों में उपलब्ध है, उनको कैसे हम लोग इंटीग्रेट करें। इस काम को करने के लिए एक तो रूटीन में जो शहर काम करते ही करते हैं, ऐसे चैलेंज करने में हमारे यहाँ तमाम सारे लोग इनोवेटिव अप्रोच, जो बहुत सारे स्टार्टअप्स हैं, नए किस्म के सॉल्यूशंस देते हैं कि कैसे हम इसको फेयर के साथ इंटीग्रेट कर सकते हैं, ज्योग्राफिकली इंटीग्रेट कर सकते हैं, लोगों को इंफॉर्मेशन, जो पैसेंजर्स को सही इंफॉर्मेशन मिले कि उनको कहीं से कहां जाना है, व्हाट इज द बेस्ट मोड ऑफ मूविंग, इसके बारे में क्या इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, कैसे हम लोग सेफ्टी लोगों का इनहांस कर सकते हैं, चाहे वो बच्चे हो, विमेन हो, उनको हम रोड के ऊपर या उनको ट्रांसपोर्ट के अंदर कैसे हम सेफ्टी इंप्रूव कर सकते हैं, इसके बारे में सोचने का लोगों को तमाम किस्म का एक बहुत सारी ह्यूज पॉसिबिलिटीज ओपन अप होती हैं। इसके लिए हमने ट्रांसपोर्ट फॉर ऑल चैलेंज जो लॉन्च किया है, इसमें हमारी गुजारिश है तमाम सारे स्टार्टअप से, बहुत सारे एनजीओ या बहुत सारे और क्रिएटिव ऑर्गेनाइजेशन इस प्रकार के काम करते हैं, उनसे कि वो ऐसे कुछ सॉल्यूशंस निकाले। उन सॉल्यूशंस को अभी हमने हाल में मंत्रालय की तरफ से एक सिटी इनोवेशन एक्सचेंज 6 के नाम से पिछले महीने लॉन्च किया था, और उसके ऊपर ये तमाम सारे स्टार्टअप्स वाले जुड़ करके बहुत किस्म के इनोवेशन काम कर रहे हैं। अब यहाँ पे इनोवेशन हमारा ट्रांसपोर्ट के बारे में और खासतौर से पब्लिक ट्रांसपोर्ट के बारे में, जो इस प्रकार के इनोवेशन अच्छा काम करेंगे, उनका हम उस चैलेंज में इसको इवैल्यूएशन करने के बाद इन्हें हम मौका देंगे। ये आगे 29 अक्टूबर से लेके 31 अक्टूबर के बीच एक अर्बन मोबिलिटी इंडिया कॉन्फ्रेंस होती है, जिसमें पूरे देश के सारे राज्य भाग लेते हैं, सारे बड़े बड़े शहर जितने इंपॉर्टेंट शहर है वो सारे शहर भाग लेते हैं, तमाम सारे ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड जो हमारे पब्लिक ट्रांसपोर्ट रिलेटेड स्टेक होल्डर्स वो भाग लेते हैं, और दुनिया भर के तमाम सारे हमारे स्टेक होल्डर्स जो है, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन, हर साल करीब 150-200 विदेशों से लोग इसमें भाग लेते हैं। ये हमारी कॉन्फ्रेंस कोची में होने वाली है, जो शहर में पहले बार हिंदुस्तान का वाटर मेट्रो आ गया, वहां पे मेट्रो सिस्टम है, ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, वो सब सारी की सारी देखने का मौका मिलेगा, लोगों के सामने प्रेजेंट करेंगे और उसको स्केल अप कर सकते हैं। साथ ही साथ जो हमारे बेस्ट 20 एंट्रीज आएंगी, उसको एवेल्युएशन के आधार पर उन सबको हम लोग अवार्ड करेंगे, जिससे कि उनको आगे मौका मिले, वो इस चीज के माध्यम से अपने देश में उनका जो इनोवेटिव जो सोल्यूशन है, वो सोल्यूशन हमारे शहर इसको अडॉप्ट कर सके। Right. Coming to you, Dr. Bani, when we talk about ensuring that people eat right and that they eat safe, how can we say that these two movements launched the movement launched by FSSAI along with the Ministry of Urban Affairs, how is it more than just an awareness programs that we have had all along for so many years? So you see, FSSAI is working. These movements, these campaigns have been envisaged like Jan Andolans. You see, unless we are creating awareness, but unless the entire population is involved in it, the entire society is involved in it, these campaigns, these awareness programs will not be successful at all. So, for example, the Eat Smart City, the challenge or the campaign is aimed to identify certain such components which can be promoted well in cities, so that these foods, so that people demand healthy foods. So, for example, FSSAI had this thing of certifying street foods or restaurants which are providing healthy food to people. So if a person sees, as a consumer, if a person sees that this particular organization or this particular restaurant has food which is healthy, which is wholesome, I would feel more encouraged to go to this place. And it is also therefore helping out not only
the supplier, because they are empowered. They know that they are able to provide these wholesome food to the people. Their credibility increases in the market, and the consumer, of course, is benefiting through it. So these sort of campaigns are involving people from all sorts of directions. If a person or a restaurant owner approaches FSSAI and says that I want to get it certified, I want to get my restaurant or my eating joint certified, then they will undergo rigorous training. They will get a proper certification, and therefore it's a win-win situation for both. The supplier is supplying good food, and the person who's consuming it is getting wholesome food, which is safe, which is nutritious. So therefore these kind of challenges become important, because they're like campaigns, they are like involving all components of the society to bring about health of the people. बिल्कुल, हमारे साथ इस वक्त अरुण सिंघल जी भी जुड़े हुए हैं। अरुण जी, आपसे जानना चाहें, जिस तरह से इस वक्त हम एक महामारी के दौर से गुजर रहे हैं, ऐसे में बीते एक साल में सही खाना पर जितनी ज्यादा चर्चा हुई वो बताना कम होगा। कितनी ज्यादा हमने यहाँ पर चर्चा की, ना सिर्फ आपकी सेहत के लिए खाना बहुत जरूरी हो गया, यहाँ पर एक बड़ी लड़ाई को लड़ने में भी भारतीय खान पान की जो भूमिका है वो काफी खुलकर आई और पूरे विश्व ने इसको माना है, जो हमारे मसाले हैं या जो हमारा सही खान पान है। किस तरह से लगता है कि जो मौजूदा परिवेश है, जो मौजूदा स्थिति है इस वक्त, उस समय में इस तरह का जो ये चैलेंज हम लॉन्च करते हैं और लोगों को जोड़ने की बात करते हैं, वो कितना प्रासंगिक हो जाता है, कितना जरूरी हो जाता है? बिल्कुल जया जी, आपने सही बात कही। कोविड का जो ये पैंडेमिक हुआ है, खान पान के ऊपर सबका ध्यान दोबारा केंद्रित हुआ है, और मैं कहूँगा एक फ्रिंज बेनिफिट है ये कोविड की सिचुएशन का, कि लोगों ने अपने खाने के बारे में, फिटनेस के बारे में और इम्यूनिटी के बारे में सोचना शुरू किया है। पूरे कोविड के दौरान FSSAI ने इंश्योर किया, और मैं अपने सारे फूड बिजनेस ऑपरेटर्स जितने हैं सबको बधाई देना चाहूँगा कि खाने की सप्लाई में कोई व्यवधान नहीं आया, सभी लोगों को खाना उपलब्ध होता रहा, फूड इंडस्ट्री पूरी काम करती रही और आगे आगे भी काम करेंगे। लेकिन प्रश्न ये है, डॉक्टर बानी ने अभी कहा कि हमें लोगों को एजुकेट करना जरूरी है, लोगों को समझाना जरूरी है कि वो अच्छा खाना खाएं। मान लीजिए कि आपने अवेयरनेस पैदा कर दी, ट्रांसफैट ठीक नहीं है, ट्रांसफैट से नुकसान होता है, या हमें ऑयल बदल बदल के यूज करने चाहिए, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स खानी चाहिए, या फोर्टिफाइड फूड्स खाने चाहिए। आपको आश्चर्य होगा जानते कि एनीमिया जो है वो केवल निर्धन परिवारों तक सीमित नहीं है। एनीमिया अच्छे परिवारों में भी बहुत सारी लड़कियों को है। सो ये समस्याएं जो है केवल एक ही सेगमेंट ऑफ सोसाइटी में कंफाइंड नहीं है, सभी लोगों को प्रभावित करती है। तो जब आप एक बार एक्सप्लेन करते हैं लोगों को, लोग मांगने लगते हैं कि हाँ हमें फोर्टिफाइड राइस चाहिए, या हमें डबल फोर्टिफाइड सॉल्ट चाहिए, हमें फोर्टिफाइड ऑयल चाहिए या फोर्टिफाइड मिल्क चाहिए। तो इन सब चीज़ों की उपलब्धता सुनिश्चित करना, इन सब चीज़ों की गुणवत्ता सुनिश्चित करना कि अच्छी क्वालिटी की चीज़ें मिलें, ये सब भी पीछे का बहुत बड़ा काम हो जाता है। और साथ ही साथ जो सिटी एडमिनिस्ट्रेशन है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, उनको सेंसिटाइज करना भी एक महत्वपूर्ण काम है कि फूड सेफ्टी के लिए उनको ध्यान देना चाहिए। जब डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, नगर आयुक्त ध्यान देने लगते हैं इन चीज़ों के प्रति, तो वो इनोवेटिव तरीके निकालते हैं। अभी DS मिश्रा साहब ने कहा था कि इनोवेटिव तरीके लोग निकालेंगे, इनोवेटिव तरीके निकालेंगे लोगों को जोड़ने का इस आंदोलन से। लेकिन जुड़ने के बाद चीजों की उपलब्धता होना, उनकी गुणवत्ता अच्छी होना, जो फूड बिजनेसेस हैं उनको नज करना कि वो अच्छी हेल्दी उत्पाद बनाएं। जैसे ट्रांस फैट के एलिमिनेशन की हम लोगों ने बात करी अभी, कि भारत 2022 में इंडस्ट्रियल ट्रांस फैट एलिमिनेट कर देगा WHO की गाइडलाइन से 1 साल पहले। अब इसको करने के लिए FSSAI ने कम से कम 15 वेबिनार किए हैं विभिन्न निर्माताओं के साथ, कि वो कैसे अपने खाद्य उत्पादों में परिवर्तन करेंगे जिससे ट्रांस फैट एलिमिनेट हो। केवल कह देना पर्याप्त नहीं है और कंज्यूमर्स को अवेयर कर देना पर्याप्त नहीं है, उसके पीछे बहुत सारा सॉलिड काम करना जरूरी है। बिल्कुल, और उनको अवेयर करने के साथ साथ जिन चीजों की हम कवायद कर रहे हैं या जिन चीजों की हम वकालत कर रहे हैं वो उनको उपलब्ध भी होनी चाहिए, इस पर भी हमें ध्यान देने की जरूरत है। बिल्कुल, इस वक्त सीधे रुक करेंगे पश्चिम बंगाल का, हमारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़े रहे हैं। लेकिन इस वक्त गृह मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह एक रोड शो में शिरकत कर रहे हैं पश्चिम बंगाल में, जहां इस वक्त चुनाव प्रचार अपने चरम पर है और उसकी सीधी तस्वीरें इस वक्त देख रहे हैं पश्चिम बंगाल से।
আপনারা শুধু প্রান্ত থেকে ছুটে এসেছেন শুধু ভারতীয় জনতা পার্টিকে সাপোর্ট করার জন্য, শুধু ভারতীয় জনতা পার্টিকে সমর্থন করার জন্য। তো আমাদের পুলিশ প্রশাসন থেকে শুরু করে সমস্ত আমাদের যে জনগণ সাধারণ মানুষ আছেন আমাদেরকে কোঅপারেশন করেছেন, আমাদেরকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন এই সুন্দর রোড শো করার জন্য। এরপরে ভারতীয় জনতা পার্টির পক্ষ থেকে আন্তরিকভাবে অভিনন্দন জানাবো। মোদী জিন্দাবাদ, জবরদস্ত মোদী জিন্দাবাদ, নরেন্দ্র দামোদর দাস মোদী জিন্দাবাদ, মাননীয় অমিত শাহজি জিন্দাবাদ, अमित शाह जी जिंदाबाद, अमित शाह जी जिंदाबाद, जेपी नड्डा साहब जिंदाबाद, जेपी नड्डा साहब जिंदाबाद, दिलीप घोष जिंदाबाद, दिलीप घोष जिंदाबाद। Well, so campaigning on in full swing in West Bengal. Well, going back to our discussion in today's edition of Atmanirbhar Bharat, we go across to Durga Shankar Mishra, who is Secretary, Ministry of Housing and Urban Affairs. So, when we talk about these two challenges, both transport for all and as well as the Eat Smart challenge, what would be the process that the ministry would be following in the selection of the cities, in the selection of the problems that would be dealt with first, the stakeholders that you would be inviting? Very briefly, because we are really running out of time, sir.
Immediately, we have got all 139 cities to get registered themselves. For this, we have given time for 1 month, that is up to 15th of May. Thereafter, I mean, during this period, there will be a lot of webinars with all these 139 cities on the 5 different aspects of the challenge, where they have to pilot at least one program, one scheme or one initiative on each of them. And thereafter, for the next 3 months, they have to go for implementation. Then we select, the challenge will be evaluated in the next 1.5 months. We declared the result. And thereafter, 11 cities will be declared as the winners. Those 11 cities will be, I mean, their initiatives, they'll be scaled up, not only there, but also will help this for all the cities. In this process, we have also tied up various international food summits or conferences, where we'll get these people to learn about the best practices across the globe. There'll be a lot of peer-to-peer learning. We have developed a smart food vision. I mean, every city has to develop their vision. There is a scorecard on which they have to, they'll be evaluated, it'll be self-evaluation. So all those things have been tied up. I think in the next 1 month, there is going to be huge engagement with these 139 cities, so that they are totally aligned to the Eat Right movement, which was launched by the FSSAI in 2018, and they start taking various actions that will lead to ultimately the decision of the 11 cities who will be awarded ultimately, and they'll be handled for future scaling up. As regards the transport for all, similar exercise will be done with our innovators, our startups, for which the 6th platform, that is the City Innovation Exchange platform, that will be used. And those who are going to submit their solutions, and I appeal to all the startups, all those who are engaged in the transport sector, to kindly submit their, do some good work, which will help our citizens to have a better travel life in the cities, and that is going to reduce the pollution, reduce the congestion, and reduce the accidents in the city. So this is in brief our line of action, and I'm sure both these challenges will lead to Andolan, a public movement. A lot of people are going to be engaged in this. We will be organizing this with our smart cities and other cities who are participating in this, and definitely that will improve the awareness, the basic concept, the basic idea which the Eat Right movement has, so that awareness will build up on different aspects which Dr. Beena was sharing or Arunji was sharing. These things will be there. So I am looking forward to a very good result out of these 2 challenges. Thank you. बिल्कुल, तो किस तरह से शहरों, नागरिक समूहों, स्टार्टअप्स को एक मंच पर लाएंगे और सार्वजनिक परिवहन में हम सुधार लाएंगे, इसको देखने वाली बात होगी। तो काफी नई चुनौतियों के साथ शुरुआत हुई है ईट स्मार्ट सिटीज चैलेंज और ट्रांसपोर्ट फॉर ऑल चैलेंज। किस तरह से इस पूरे चैलेंज को आगे बढ़ाएंगे, ये सुना हमने अपने खास मेहमानों के साथ। Many thanks to all our guests on the show, Mr. Durga Shankar Mishra ji, Dr. Bani, as well as Mr. Singhal, for joining us and for all your invaluable inputs. In the course of our discussion, we learned a little bit about how people in major cities across the country can deal with 2 major challenges: how to eat smart and eat right, and how best to travel. What are the challenges that we have now, and how they can be overcome with the help of the government? Of course, at the end of it is to have a major Jan Andolan. बिल्कुल, और इसी के साथ आत्मनिर्भर भारत के इस विशेष अंक में इतना ही। नमस्कार।